السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز اور میں ہوں احسن رضا اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ ابتدا ہے رب کریم کے نام سے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ سب سے پہلے بات کریں گے بھارتی دہشت گرد کی جارحیت کی اور پاکستان کے ذمہ دارانہ رویے کی۔ تو ذمہ دار ریاست ہونے کا ایک اور ثبوت، پاکستان نے انڈین را کے حاضر سروس دہشت گرد کمانڈر کلبھوشن یادو کو تیسری بار قونصل رسائی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان نے سیکیورٹی اہلکار کے بغیر رسائی دینے کی پیشکش کی ہے۔ اس بارے میں رسمی طور پر بھارتی حکام کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل نئی دہلی کی درخواست پر بھارتی جاسوس کو دوسری بار قونصلر رسائی فراہم کی گئی تھی۔ پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو تیسری بار قونصل رسائی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے قبل نئی دہلی کی درخواست پر بھارتی جاسوس کو دوسری بار قونصل رسائی فراہم کی گئی۔ اس دوران بھارتی ہائی کمیشن کے 2 قونصلرز کلبھوشن سے ملے تھے۔ اس سے قبل بھی ویانا کنونشن 1963 کے تحت کلبھوشن کو 2 ستمبر 2019 کو قونصلر رسائی دی گئی تھی۔ اس موقع پر کلبھوشن یادو کی اس کی والدہ اور اہلیہ سے 25 دسمبر کو ملاقات کروائی گئی تھی۔ معاملے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ بھارت پاکستان کو تنہا کرنا چاہتا تھا، لیکن اب خود تنہا ہو چکا ہے۔ بھارتی سفارتکار کلبھوشن کی کوئی بات سنے بغیر چلے گئے۔ کلبھوشن پکارتا رہا، بھارتی سفارتکار بات کرنے سے کتراتے رہے۔ بھارت کی بدنیتی کھل گئی، یہ رسائی نہیں چاہتے تھے۔ بھارتی نیوی کے کمانڈر کلبھوشن یادو کو 3 مارچ 2016 کو کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشن میں بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا۔ تحقیقات کے دوران کلبھوشن یادو نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں اپنے ملوث ہونے کا اعتراف بھی کیا اور پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے میں را کے ملوث ہونے کے بارے میں اہم انکشافات بھی کیے۔ ایک فوجی عدالت نے کلبھوشن یادو کو سزائے موت سنائی تھی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے حاضر سروس دہشت گرد کلبھوشن یادو سے متعلق حکومتی آرڈیننس پر وزیر اعظم کو گھر جانے کا مشورہ دے دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ کون سا خفیہ آرڈیننس ہے جو حکومت نے پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر متعارف کرایا؟ سیکرٹ آرڈیننس پی ٹی آئی کی حکومت نے پیش کیا اور نہ اپوزیشن جماعتیں کو بتایا گیا، نہ پارلیمان کو، نیشنل اسمبلی کو، سینٹ میں اعتماد میں لایا گیا، نہ پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لایا گیا۔ And the ordinance is called the International Court of Justice Review and Reconsideration Ordinance. بھارتی جاسوس کلبھوشن کے حوالے سے حکومتی آرڈیننس، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کے احتساب کا مطالبہ کر دیا۔ تو یہ آرڈیننس کیا ہے؟ یہ ہے آرڈیننس کلبھوشن یادو کے لیے، یہ کلبھوشن یادو کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حکومت نے یہ آرڈیننس انٹروڈیوس کیا ہے، اور یہ آرڈیننس انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ٹویٹر کے محاذ سے لفظی تیر اندازی کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کو گھر جانے کا مشورہ دے دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت نے جتنے کیٹاسٹرافک ڈیسیژنز لیے ہیں وہ تو ماضی میں آپ کے سامنے ہیں، مگر یہ ایک انپریسیڈنٹڈ موو ہے جو ہمارا سمجھ سے باہر ہے۔ اگر اس قسم کا آرڈیننس کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی اسٹریٹجی کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ سے لانے کی ضرورت تھا بھی صحیح، تو اس حکومت کا ذمہ داری تھا کہ اپوزیشن پارٹی سے بات کی جائے۔ اس حکومت کو پاکستان کے عوام کو بتانا چاہیے تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر آرڈیننس کی کاپی شیئر کرتے ہوئے سوال کیا کہ وہ کون سا خفیہ آرڈیننس ہے جو حکومت نے پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر متعارف کرایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے آرڈیننس کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے حکومت سے جواب مانگا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وزیر اعظم عمران خان کو جانا چاہیے۔ بھارت کا پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا ایک اور ثبوت، حوالہ ہندی کے بین الاقوامی خفیہ نیٹ ورک سے وابستہ ملزم کو ایف آئی اے انسداد دہشت گردی ونگ نے گرفتار کر لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عطا حسین۔
भारत का दहशत गर्दाना चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। भारत की पुष्टपनाही पर रोशनियों के शहर में तकरीबकारियों के लिए फंडिंग इकट्ठी करके बैरून मुल्क भिजवाने वाला भारतीय आलाकार कानून की गिरफ्त में आ गया। FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने कराची के इलाके सदर में कार्रवाई करते हुए हवाला हुंडी के बैनुल अक़वामी नेटवर्क से वाबस्ता मुलजिम यासीन को गिरफ्तार कर लिया। FIA हुकाम के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रा के गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदेही पर कार्रवाई की गई। हवाला हुंडी की जानिब से खुफिया नेटवर्क के जरिए मुल्क दुश्मन अनासर को रकम फराम की जा रही थी। गिरफ्तार मुलजिम यासीन मनी एक्सचेंज कंपनी का मैनेजर है। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जबकि हवाला हुंडी के बैनुल अक़वामी खुफिया नेटवर्क से वाबस्ता दीगर मुलजिमान की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर मुलजिमान की तफसीलात भी फराम कर दी गई हैं। इससे पहले भी भारत के कई कारिंदे कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के वाकयात नहीं रुक सके हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर बाजोड़ में सरहद पार फायरिंग से 3 पाकिस्तानी शहरी शहीद जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान का सरहदी इलाका बना एक बार फिर अफगान दहशतगर्दी का निशाना। 3 शहरियों ने जामे शहादत नोश किया और 2 फौजी जवानों समेत 7 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए नजदीकी मरकज पहुंचा दिया गया है और शहीदों की मैयतें वुरसा के हवाले कर दी गई हैं। माजी में भी अफगानिस्तान की सरहद से पाकिस्तान के कबायली इलाकों पर फायरिंग की जाती रही है, जिसके नतीजे में भारी जानी और माली नुकसान हुआ। अफगान सरहद से पाक फौज की चौकियों को भी निशाना बनाया जाता रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 2000 किलोमीटर से जायद तवील सरहद पर बाड़ लगाने का काम भी जारी है। ये बाढ़ शरपसंद अनासर की बॉर्डर क्रॉसिंग को रोक देगी और पाकिस्तान में उनकी सरगर्मियां कम होंगी। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ लगाने के अमल में रखना डालने के लिए दहशतगर्द और दीगर शरपसंद अनासर तकरीबी कार्रवाइयां करते रहते हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को भारी जानी और माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने फिर हुक्मरान जमात को माफिया करार दे दिया। बोले एक माफिया इनके बीच है और दूसरा साथ बैठा है, पहले इनको पकड़े फिर मामलाते हुकूमत ठीक होंगे। चीनी 90 क्रॉस कर चुकी 800 वाला आटे का थैला 1100 तक जहां पहुंचा। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत की तवज्जो गवर्नेंस पर है ही, कुछ भी हो हुकूमत नफरत, इंतकाम और जुल्म से नहीं चल सकती। ये माफियाज नहीं है, ये हुकूमत के अंदर बैठे माफिया हैं। हुकूमत ये बताए कि चीनी की कीमत 53 रुपए 53 रुपीज कब होगी। वो भाई माफिया तो आपके साथ बैठा है। एक माफिया को आपने जो है वो बाहर भेज दिया, दूसरा माफिया आपके पास बैठा है और उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि जी हमने वो रिपोर्ट जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट करवा दी है और रिपोर्ट हमने शाया कर दी है, जो कभी आज तक किसी ने कमीशन रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं की। ये इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी को जन्म दे सकता है। अफरा तफरी और अनारकी किसी भी रियासत की जो है वो बुनियादों को हिला सकती है। मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि 2007 और 2009 के दौरान भी चीनी का बहरान पैदा हुआ था। 100 से ज्यादा पिटिशंस ने हुक्म इम्तना ले रखा है। मजीद बोले कि कोई कमीशन आज तक पब्लिक नहीं हुआ। उजैर बलोच और दीगर की रिपोर्ट्स भी अदालती हुक्म पर पब्लिक हुई। सन 2009 से लेके आज सन 2020 में हम बैठे हुए हैं। वो 100 से ज्यादा पिटिशंस हैं जिसके अंदर स्टेज हैं और उन्होंने झगड़ा हुआ है उस फाइन को जो कि बाकायदा कानूनी तौर पे डिटर्मिन होके हुआ था। पहले कमीशन बना, एक आज़ाद कमीशन बना, उसने अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की, वो इंक्वायरी शेयर हुई, आप लोगों से भी शेयर हुई, पब्लिक में भी आई। फिर उसके बाद क्या होता है, वही इदारे जो हैं वो स्टेज में चले जाते हैं। इस कमीशन से पहले पाकिस्तान की तारीख में, मुझे आप बता दें अगर मेरी यादाश्त में या मालूमात में कोई गलती है, कोई कमीशन आज तक पब्लिक नहीं हुआ। जो भी पब्लिक हुआ उसमें अवाम या कोई भी मुतासरा अफरीक अदालतों के चक्कर खाता रहा, उसने रिटें की, चाहे वो हमूदुर रहमान कमीशन हो या लेटेस्ट ये उजैर वाला JIT हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इमरान खान को ट्विटर का वजीर आजम करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान में मुल्क की क़यादत करने की अहलियत ही नहीं है, वो मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म बनने को तैयार नहीं।
عمران خان صاحب اس بات پہ خوش ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا اور ٹویٹر کا اور فیس بک کا وزیر اعظم ہے، پاکستان کا وزیر اعظم بننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے پاکستان کا وزیر اعظم بننا تو پھر جب پاکستان پہ کرائسس آ جاتے ہیں آپ کو اس پورا قوم کا لیڈر بننا پڑتا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی کارکن کے لیڈر بننا پڑتا ہے، نون لیگ کے کارکن کے لیڈر بننا پڑتا ہے، پورا ملک کا وزیر اعظم بننا پڑتا ہے۔ لیکن چاہے یہ ہمارا کشمیر کا ایشو ہو، اکنامک ایشو ہو یا کووڈ کا پینڈیمک ہو، یہ وزیر اعظم صرف اور صرف ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم رہنے میں خوش ہوتا ہے، پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑتا ہے، کشمیر کے عوام کو لاوارث چھوڑتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے شریف برادران کو فنکار قرار دے دیا۔ فیاض الحسن چوہان بولے کرپشن کے نت نئے طریقے ایجاد کرنے والوں نے گریڈ 20 کو گھریلو ملازم بھرتی کیا۔ مزید بولے کہ منظور پاپڑ والے نے شہباز شریف کے اکاؤنٹ سے 12 ٹرانزیکشنز کی، اپوزیشن کو تعمیری کام کرنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ انہوں نے 73 کے آئین کے تناظر میں 74 جو ہے اے پی سی منعقد کر لی اور کہا جی اے پی سی منعقد ہوگی حکومت ختم ہو جائے گی، حکومت ادھر کی ادھر۔ لانگ مارچ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اربوں روپے کمائے۔ کن سے کمائے؟ میاں نواز شریف صاحب سے، میاں شہباز شریف صاحب سے، آصف زرداری صاحب سے، بلاول زرداری صاحب سے۔ اس نے اپنا جناب دیہڑی لگانی تھی، وہ دیہڑی لگا کے نکل گئے۔ شاہد خقان عباسی صاحب نے بڑک ماری ایک کہ جناب اب ہم ایک سیریس قسم کی اے پی سی منعقد کریں گے، پہلے آپ غیر سیریس اے پی سی منعقد کرتے رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے پنجاب حکومت کرائیں گے، وہ سب سے آسان ہے۔ اسی دن شام کو، پرسوں رات کو 15 ان کے نون لیگ کے ایم پی ایز ریسپیکٹیبل بیٹھے، انہوں نے بیان دیا کہ ہم آل شریف اور اپنی نون لیگ کی قیادت کی کسی کرپشن، کسی بددیانتی، کسی ٹکے ماری اور کسی منی لانڈرنگ کا دفاع نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان پر کڑی تنقید کے بعد پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ اور نعرے بازی، خوراک اور زراعت پر ہونے والی بحث احتجاج کی نظر ہو گئی۔ فرحان اجاز رپورٹ کریں گے۔ جی آرڈر ان دی ہاؤس۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 1 گھنٹہ 35 منٹ کی تاخیر سے پینل آف چیئرمین کی صدارت میں شروع ہوا۔ پنجاب اسمبلی کی سرکاری کارروائی میں محکمہ زراعت اور خوراک پر عام بحث ہوئی، جو شور شرابے کی نظر ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کی تقریر کے دوران حکومتی ارکان نے خلل ڈالا تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان روزانہ کی بنیاد پر بھیک مانگتا ہے۔ وہ چوکیاں دے پیسے تے پڑھتے ہیں، میرے بچے بھی چوکیاں دے پیسے تے پڑھن۔ سر جنہوں نے گھر کا کچن نہیں چلایا انہوں نے کی پتا کہ ساڈا کچن کس طرح چل رہا ہے۔ میں اپنی گل کر رہا اور میری پرامن گل دے وچ انہوں نے نجائز مداخلت کر کے کی۔ میں کہنا ہے کہ وہ بھیک منگا ہے، میں کہنا ہے کہ ان کے بچے چوکیاں دے جناب چیئرمین میں صوبائی وزیر قانون نے حسن مرتضیٰ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کو بیکاری کہنا غیر پارلیمانی الفاظ ہے۔ وزیر اعظم عوام کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جس لہجے میں بات کرے گی حکومتی بینچوں سے اسی لہجے میں جواب ملے گا۔ بھیک مانگ رہے ہیں، اس ملک کی خاطر بھیک مانگ رہے ہیں جس ملک کو یہ لوٹ کر کھا گئے۔ جناب چیئرمین یا بڑے مظلوم بن کے، میں کل بھی سن رہا تھا مظلوم بن کے باتیں کر رہے تھے، مظلومیت۔ جناب چیئرمین یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے میری بات سن رہے آپ کر کے وہاں کو ہمیں کوئی۔ وزیر زراعت نعمان لنگڑیال نے زراعت اور خوراک پر عام بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ کسان کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی، جبکہ گندم، بیج، زرعی ادویات اور شوگر کین کے لیے نئے پروجیکٹ بھی متعارف کرائے جا رہے ہیں، جس سے عام کسان کو فائدہ ہوگا۔ چیئرمین پینل میاں شفیع نے ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس سوموار کی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرہ مین ذیشان زاہد کے ساتھ فرحان اجاز، سچ نیوز، لاہور۔ بدلتے موسم کی آپ کو خبر دیتے ہوئے آپ پر ایک نیا انکشاف کریں کہ پاکستان میں صرف مہینے ہی 12 نہیں بلکہ موسم بھی پورے 12 ہیں۔ جی ہاں، وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر اہل وطن کو نیا سبق پڑھا دیا۔ بولے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کو اللہ نے 12 موسم عطا کیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر قوم کو نیا سبق پڑھا دیا۔ کہوٹا میں شجرکاری مہم سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ انگریز دور میں جو جنگلات بنائے گئے وہ بھی تباہ ہوئے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، پاکستان کے پاس
12 मौसम हैं। अल्लाह ने इसमें खूबसूरती दी है, अल्लाह ने नेमतें बख्शी हमारे मुल्क में, अल्लाह ने वो चीजें दी हैं जो शायद दुनिया में किसी मुल्क में हो। 12 मौसम है पाकिस्तान में, 12 मौसम है मुल्क में जो शायद ही किसी मुल्क के अंदर हो। यानी हम सब कुछ उगा सकते हैं इस मुल्क में, लेकिन हमें कदर करनी चाहिए। अल्लाह की नेमत है ये मुल्क, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। और ये जब आप दरख्त अपने बचाते हैं तो अल्लाह की नेमतों की आप कदर करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता साल मियांवाली में भी अपने खिताब में जब पहली बार 12 मौसम का पैगाम सुनाया तो माहिरीन मौसमियात भी मुंह देखते रह गए थे कि आखिर ये कौन से सीजन की बात कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं। आप में से कितनों को पता है कि अल्लाह ने पाकिस्तान में 12 मौसम दिए हैं? 12 मौसम है पाकिस्तान में। कितने दुनिया में मुल्क में 12 मौसम है? हर किस्म की चीज, हर किस्म का फल पाकिस्तान में उग सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के 12 मौसम के खिताब पर नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह भी चुप न रह सके। कहा कि शुक्र करें 24 नहीं कह डाले। वो तो और भी बहुत कुछ कहते हैं, चले 12 मौसम उन्होंने कह दिए, कहीं 24 नहीं कह दिए। दरअसल आदमी जिस हालत में वो जाके तकारीर करते हैं, उस हालत में आदमी जब हो तो उसे 4 का 12 और 12 का 24 नजर आ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की काबीना में भी ऐसे माहिरीन हैं कि उनके अक़वाल सुनकर अकल दंग रह जाती है। वजीर माहौलियाती तब्दीली जरताज गुल ने इंकिशाफ किया था कि बारिशें भी इमरान खान की वजह से ही होती हैं। अल्लाह का करम है कि आप लोग देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा तादाद में बारिशें और बर्फबारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई जितने इस दफा हुई है। उसका क्रेडिट भी मैं अपने आप को नहीं दे रही, वो मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे रही हूँ। अवाम बेचारे परेशान हैं कि अब किसकी माने, साइंसदानों की या वजीर आजम की। अगर मामला यूं ही चलता रहा तो ना जाने आगे क्या क्या सुनने को मिलेगा। कराची शहर में शदीद गर्मी के बाद मौसम ने ली अंगड़ाई। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे तो गर्मी की हो गई छुट्टी। कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली भी जारी है। सड़कें तालाब बनने से ट्रैफिक का निजाम भी शदीद मुतासिर हुआ है। दिन भर शदीद गर्मी और हबस के बाद शहर कायद के बासियों पर कुदरत मेहरबान हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश होने से न सिर्फ गर्मी की छुट्टी हो गई बल्कि मौसम खुशगवार होने से शहरियों के मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे। मुख्तलिफ इलाकों में बाराने रहमत के साथ साथ हर तरफ ठंडी हवाओं ने भी डेरे जमा लिए। क्लिफ्टन आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर गुलिस्तान जौहर, कुरंगी अख्तर कॉलोनी, महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी, मलीर एम जिना रोड और शारा फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हुई। बारिश की बूंदें जमीन पर पड़ते ही हस्बे मामूल के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी सामने आ गई है। बिजली की आंख मचोली भी जारी है। जहां बिजली है वहां करंट लगने के वाकयात भी सामने आ रहे हैं। मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से ट्रैफिक का निजाम भी दरम भरम होकर रह गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से शहरी ट्रैफिक जाम में फंस गए। कराची में बारिश के बाद शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं तो दूसरी जानिब बारिश की पहली बूंद पड़ते ही शहर के 70% हिस्से की बिजली गायब हो गई। कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद एजाज से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, कराची के इलाके जो है गुलबर्ग टाउन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है एक तरफ जो है कराची के अंदर रहमत तो बरसी लेकिन उसके बाद दूसरी जानिब जो है शहरियों पर रहमत बन गई। और यहाँ पे जो है इस वक्त लाइट का इतना बुरा हाल है कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है सराज के जो है ना लाइट जो है यहाँ पर अभी तक जो है आई नहीं है। उसकी जानिब जो है शहर कायद के अंदर जो बारिश का सिलसिला जारी था जिसमें सदर के अंदर 41 मिलीग्रेड और जो है इसके अलावा जो है जिना टर्मिनल में जो है 13.8 इशारिया और इसके अलावा नाजमाबाद में 8 और इसके अलावा जो है गुलशन हदीद के अंदर 4 मिलीग्रेड और मुसर्वर बैस के अंदर जो है 3 इशारिया किलोमीटर। इसके बावजूद जो है AF मसरूर के अंदर 66 किलोमीटर। इसके अलावा जो है बेस फैसल के अंदर 59 किलोमीटर, जिना टर्मिनल में
55 किलोमीटर जो है घंटा रिकॉर्ड की गई बारिश जो है शहरियों के ऊपर जो है ना रहमत की जगह जो है जहमत बन गई। और इसके अलावा जो है मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं उनको क्या कहना है कि जो है ना बिजली के लिए। आप ये बताइएगा कि आपका क्या कहना है बिजली के हवाले से जो बारिश हुई है? बारिश तो अपनी जगह हुई है, लेकिन केसी का ये मसला है कि फौरन लाइट चली गई है और काफ़ी देर से लाइट गई हुई है। इनका कोई निज़ाम सही नहीं है और कुछ भी बस ये आते हैं। अभी एक यहाँ पे हलाकत भी हुई है, कुत्ता मर गया यहाँ पे, और इनका कोई निज़ाम अच्छा नहीं है केसी वालों का। और मेरी ये वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि खुदारा ये केसी का निज़ाम संभालें सही तरीके से, इनको हिदायत दें कि कम से कम ये चलाएं सही से। लाइट का मसला चल रहा है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, हल्की सी बारिश होती नहीं है और लाइट चली जाती है फौरन, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग। अच्छा, एक शहरी हमारे साथ और मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं इनका क्या कहना है। जी बताइएगा। बारिश तो हुई लेकिन जो है पानी के निकासी का कोई इसमें रद्द अमल नज़र नहीं आया है। रोडों पे इतना पानी है कि ऑफिस से घर तक आना बहुत मुश्किल हो गया। अभी भी बस रोड पे ही खड़ा हूँ और घर तक अभी पहुँच नहीं पाया हूँ क्योंकि बाइक ख़राब हो गई है पानी की वजह से। इतना पानी है कि नहीं आ पा रहा बंदा। जी बिल्कुल, आपने देखा शहरियों के अंदर जो है शदीद गुस्सा नजर आता है और उनका यही कहना है कि जो है बारिश तो हुई लेकिन निकासी का कोई निज़ाम नहीं है, लाइट का कोई निज़ाम नहीं है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ इलाकों की जो है लाइट बिल्कुल बंद हो चुकी है, जिसमें गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, शुक्रिया शाहिद। बारिश के पहले शहर कायद में ऐसी गर्मी पड़ी कि गुज़िश्ता 62 सालों में नहीं पड़ी थी। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज कर गया है। इससे कबल 3 जुलाई 1958 को पारा 42 को छू गया था। बारिश से पहले कराची में तारीखी गर्मी पड़ी। जुलाई के महीने में गर्मी का 62 साला रिकॉर्ड तक टूट गया। शदीद गर्मी से शहरी बिलबिलाते रहे। दिन के औकात में कराची शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो कि 62 साल पहले 1958 में जुलाई के महीने में 3 तारीख को रिकॉर्ड किया गया। 42.2 सेंटीग्रेड से 4 डिग्री ज्यादा था। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक गुज़श्ता साल 17 जुलाई को गर्मी का 48 साल का रिकॉर्ड भी टूटा था, जब पारा 42 डिग्री को छू गया था। जबकि 22 जुलाई 1982 को भी कराची का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। और अब आपको बताएं कि भारतीय फौज की एलओसी पर इश्तियाल अंगेजियां जारी हैं। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज ने रकचक्री और बुरुज सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से 2 खवातीन भी जख्मी हुई हैं। भारत ने रवां साल 1697 सीजफायर की खिलाफ वर्जियां की, ऐसा कहा गया है। डीजी आईएसपीआर की जानिब से आपको बताएं कि भारतीय फौज की एलओसी पर इश्तियाल अंगेजियां जारी हैं। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज ने रकचक्री और बरोह सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से 2 खवातीन जख्मी हो गईं। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अब आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार है। कमोबेश शहर का हर इलाका गैर एलानिया लोड शेडिंग की जद में है। रिपोर्ट कर रहे हैं अता हुसैन। कराची में शदीद गर्मी में भी के इलेक्ट्रिक वालों को अवाम पर तरस न आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहर के वो इलाके जहां बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है उनमें नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, बफर जोन और लियाकताबाद शामिल है, जहां गुज़िश्ता रात भी बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। औरंगी टाउन, गुलबहार और एहतियाफ के इलाकों में भी बिजली की आग मचोली जारी है। लोड शेडिंग और गर्मी के बायस शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। बयान नहीं कर सकता हूँ मैं, आप तमाम लोगों से जाके मालूम कर लीजिए इलाके में कि कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। अभी गई थोड़ी देर के 10 मिनट के लिए खोल दिया, 15 मिनट के लिए, फिर घंटा 2 घंटे के लिए गई। ये मामूल बना हुआ है। 4 घंटे 2 घंटे के बाद 2 ढाई घंटे 3 घंटे, अब रात को 11:30 लेते हैं, 2 बजे लाइट देते हैं। लाइट तो जो है ना 2 घंटे आती है, 2 घंटे चली जाती है। कोई टाइम नहीं है लाइट का, 2-2 3-3 घंटे चली जाती है। शहरियों का शिकवा है कि लोड शेडिंग के बावजूद भारी भरकम बिल भी फराहम किए जा रहे हैं। और गैस का बिल, बिजली का बिल बहुत आ रहा है। अभी 2-3 महीने बिजली का बिल नहीं भरा, मकान का किराया नहीं भरा। हम गरीब बने मजदूर कहाँ जाए। शहरियों का कहना है कि एक तरफ कोरोना वायरस की वबा ने हालात मुश्किल बना दिए हैं और ऊपर से शदीद गर्मी में होने वाली लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इलेक्ट्रिक को लगाम दी जाए ताकि बिजली बिना किसी तातुल के फराहम हो सके। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची।
कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बनाई गई कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। कमेटी कल नेपरा को रिपोर्ट पेश करेगी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग पर बनाई गई 4 रुकनी तहकीकात कमेटी ने तहकीकात की हैं। जराये के मुताबिक कमेटी की जानिब से रिपोर्ट कल नेपरा को पेश किए जाने का इम्कान है। नेपरा अथॉरिटी रिपोर्ट की रोशनी में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई करेगी। गुज़िश्ता हफ्ते नेपरा की जानिब से खुली समाअत के दौरान मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत के अंबार लगाए थे। नेपरा की जानिब से तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला किया गया। कराची में तहकीकात मुकम्मल करके कमेटी के अरकान इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुरतब कर ली है। जबकि वजीर तवानाई उमर अयूब ने दावा किया है कि बिजली का शॉर्टफॉल है, न मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग नहीं, तकनीकी वजूहात पर लोड मैनेजमेंट की जाती है। सिंध में 20% फीडर्स हाई लॉसेज एरियाज में हैं। लोग कुंडा लगाकर बिजली इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन निजाम में इन्वेस्टमेंट नहीं की। नंबर 2, जो आपका सेंट्रल डिलीवरी पॉइंट है, आप समझ लें आम जबान में वो प्लग जहां से नेशनल ग्रिड से वो बिजली ले सकते हैं। इस वक्त जो उनकी टोटल रिक्वायरमेंट है 650 मेगावाट, उससे ज्यादा हम लोग दे रहे हैं। पर उससे ज्यादा जो हमारा सिस्टम नेशनल ग्रिड का 500 केवी पे चलता है, वो उनका सिस्टम 220 का है। उन्होंने 500 केवी के ग्रिड स्टेशन बनाने हैं 2, वो फरवरी 2022 तक बनेंगे। उससे पहले हम लोग बनवाएंगे उनसे। उससे इंटरम में उनका एक LNG प्लांट भी आ रहा है। अगले साल ये सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। और इस वक्त जनाब चेयरमैन जो मुआहिदा है के इलेक्ट्रिक के साथ, वो है 190 MMCFT गैस का, उससे ज्यादा हम लोग दे रहे हैं। इस वक्त औसतन जो गैस मिल रही है वो 100 MMCFD के इलेक्ट्रिक को हम लोग ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ तकरीबन 40,000 टन तेल RFO हम लोग के इलेक्ट्रिक को इस वक्त हम लोगों ने उनके लिए मुख्तस करके दे बैठे हैं। और इस वक्त डोमेस्टिक प्रोडक्शन RFO का पाकिस्तान का तकरीबन 80% हिस्सा के इलेक्ट्रिक को हमने मुख्तस किया हुआ है, वो वहां पे जा रहा है। मुल्क में तेल के बहरान का खतरा टल गया। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम के साथ मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म कर दी। मुख्तलिफ इलाकों के लिए तेल की सप्लाई बहाल हो गई। तर्जमान पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम के हुकाम ने ऑयल टैंकर एसोसिएशन से राब्ता करके उनके जायज मुतालबात मुतलका अदारों तक पहुँचाने की यकीन दहानी करा दी। हुकाम की जानब से राब्ते के बाद ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने हड़ताल मुलतवी कर दी और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को तेल की सप्लाई बहाल कर दी। ऑयल टैंकर एसोसिएशन का वफ्द 20 जुलाई को पेट्रोलियम डिवीजन में हुकाम से मुलाकात करेगा और किरायों में इजाफे और टूल टैक्स में इजाफा वापस लेने समेत दीगर मसाइल के बारे में अपने मुतालबात पेश करेगा। FBR में आला सतह के तकर्रुर तबादले, हाफिज मोहम्मद अली को मेंबर HRM FBR मुकर्रर कर दिया गया। डॉक्टर हामिद अतीक सर्वर मेंबर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तैनात कर दिए गए। चौधरी मोहम्मद तारिक मेंबर लैंड FBR तैनात कर दिए गए हैं। अमरीन इफ्तिखार मेंबर रिफॉर्म्स FBR तैनात हो चुकी हैं, जबकि बख्तियार मोहम्मद मेंबर एडमिन FBR तैनात हुए हैं। डॉक्टर फैज इलाही मेमन DGSI तैनात हुए हैं और डॉक्टर लुबना अयूब चीफ कमिश्नर RTO कोयटा तैनात हुई हैं। साजिदुल्लाह सिद्दीकी DG रेचल इस्लामाबाद तैनात हुए हैं। चमगादड़ का घोंसला ढूंढने के चक्कर में मुलाजिम ने अपनी कंपनी के पैसे चुरा लिए। गिरफ्तार मुलजिम को पेशावर हाई कोर्ट से जमानत पर रिहाई भी मिल गई। चमगादड़ के घोंसले के लिए चोरी करने वाले को रियायत मिल गई। 1 करोड़ की चोरी करने वाला मुलजिम जमानत पर रिहा हो गया। कहानी कुछ इस तरह है कि पेशावर में एक शख्स ने इंटरनेट पर इश्तिहार देख लिया कि चमगादड़ का घोंसला 10 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, 50 लाख में भी नहीं, पूरे 1 करोड़ रुपए में बिकेगा। इश्तिहार पर नजर पड़ते ही मुलाजिम की हुई नीयत खराब और अपनी ही कंपनी से 1 करोड़ 54 लाख रुपए चोरी कर लिए। बात अदालत तक पहुंच गई
तो मुलजिम के वकील ने अदालत को बताया कि मुलजिम को बगैर सबूत के केस में मुलव्वस किया गया, हालांकि वो हर जुमेरात को पैसे कंपनी को बैंक के जरिए देता है। वकील के मुताबिक 12 लाख रुपए मुलजिम से बरामद हुए इसके अपने हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद मुलजिम सलीम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। मकबूज आबादी से आपको खबर दें तो इंसानियत का दुश्मन मजलूमों पर कहर ढाने से बाज न आया। भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी कार्रवाइयों में मजीद 4 कश्मीरी शहीद कर दिए गए। वादी में जबरी पाबंदियां ताहाल बरकरार हैं। काबिज फौज की कार्रवाइयों में रवामा 18 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। वादी जन्नत नजीर का चप्पा चप्पा खुद पर गुजरे अनगिनत मजालिम की दास्तान सुना रहा है। एक तरफ वबाई हमलों ने कश्मीरियों की जान अजाब में डाल रखी है, तो दूसरी तरफ भारतीय दरिंदा सिर्फ फौज है कि हर रोज मजलूमों के खून से होली खेलने में मसरूफ है। शैतान सिर्फ तहलकार सूरज गुरूब होते ही वारदातों की अंजाम दही को निकल खड़े होते हैं। अगवा, कत्ल, लूटमार, इस्मत दरी भारतीय फौज की शनाख्त बन चुकी है। मोहलिक वबा के तदारुक की आड़ में काबिज इंतजामिया ने कश्मीरियों पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं। मुकामी डॉक्टर्स पर तिबी सरगर्मियां अंजाम देने पर पाबंदी, जर खरीद डॉक्टर्स तैनात किए गए हैं। कश्मीरी खौफजदा हैं कि कहीं इलाज के बहाने उन्हें मजीद जानी खतरात से दो चार न कर दिया जाए। मकबूजा वादी में अगस्त 2019 से मुसलसल कर्फ्यू नाफिज है। अशिया खुरोनोश की तरसील पर पाबंदी आयद है। बीमारों को दानिस्ता मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। जान बचाने वाली अद्वियात की फराहमी मुअत्तल है। इंटरनेट, मोबाइल फोन और लैंडलाइन सर्विसेज भी मुअत्तल हैं। इंसानी हकूक की तंजीमों और सहाफती सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद है। और अब बात करें खेल के मैदान से। कौमी टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान ने 2016 में पाकिस्तान के लॉर्ड्स में फतह को करियर की यादगार फतह करार दे दिया। उनका कहना था कि मिसबाहुल हक का अंदाज सबको खूब पसंद आया। हमारी फतह असल में टीम वर्क का नतीजा थी। मैं जरूर शेयर करूंगा। उसकी वजह ये कि उसमें एक अच्छी बात थी कि वो मैं किया, शुरू मैंने किया, उसके बाद मैं गायब हो गया, तो लोगों को इतना पता नहीं चला कि ये सैल्यूट वाला जो था यूनुस खान ने शुरू किया था। फिर उसका जिस तरह मेरे ख्याल से वो हिस्ट्री हो गई है और जिस तरह हमें उसका फीडबैक मिला, जिस तरह लोग आज भी इसको 4-5 साल हो गए उसको याद रखते हैं, तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो हम अपने ट्रेनर से काकुल में और अपने बाद में हम प्रॉमिस करके आए थे कि हम उनके लिए ऐसा कुछ करेंगे जो कि बहुत दूर तक गया, जो कि उनके लिए एक मैसेज हो कि थैंक यू कि आपने हमें हेल्प किया, हमें सपोर्ट किया और हमें पुश किया, हमें अपनी बाउंड्रीज का बताया कि हम कहाँ तक एक इंसान एक टॉप का प्लेयर कहाँ तक जा सकता है। फिल्मवर्क सच न्यूज स्टूडियो से इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज।